हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ निष्ठा And I'm Stuti. and welcome back to another episode of Namaste Narratives. Namaste to everyone. नमस्ते टू एवरीवन। ओके, तो स्तुति, आज का हमारा टॉपिक क्या है? So Nishta, आप और मैं डिस्कस कर रहे थे we might want to start a twin flame series. So ये उसका फर्स्ट एपिसोड है. We are not sure कि how much it will be extending और इसमें कितने एपिसोड होंगे. But yeah, let's start the series. So आप बताओ today at this moment what question we want to take and what we want to cover in this podcast. सबसे पहले तो हम दोनों ट्विन फ्लेम हमारा फोटे बोल Forte. सकते हैं, हमारा फेवरेट टॉपिक है, हमारी जर्नी है। आपकी शुरुआत ट्विन फ्लेम जर्नी से हुई थी। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी से हुई थी। um, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी थ्रू माय इनिशिएशन, जो मेरी राधा स्वामी से इनिशिएशन हुई थी, महाराज जी से, एंड देन ऑफ कोर्स द ट्विन फ्लेम जर्नी हैपेंड। बट फॉर यू, फॉर समवन लाइक यू जिसकी अवेकनिंग थ्रू ट्विन फ्लेम हुई है, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ व्हाट इज ट्विन फ्लेम। बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे जो मैं तो साफ साफ सीधा सीधा ही बोलती हूँ, नो शुगर कोटिंग, जो लिटरली स्कैमर्स हैं, झूठ बोलते हैं ट्विन फ्लेम के नाम पे, लोगों से पैसे ऐंठते हैं और सिर्फ लोगों को लूप में अटका के रखते हैं ट्विन फ्लेम के, कि एक वो लॉलीपॉप दे के रखते हैं कि अच्छा देखो तुम्हारी यूनियन होगी, देखो तुम्हारी यूनियन होगी। बट मैं पर्सनली ऐसे लोगों के सेशंस ले चुकी हूँ, आप पर्सनली ऐसे लोगों के सेशंस ले चुके हो जो सालों से इन्हीं सब चीजों में अटके हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन कि ट्विन फ्लेम क्या होता है स्तुति? Okay. as per my current consciousness, अब मैं कुछ देखो 2-3 साल बाद कुछ और बोल दूं तो फिर लोग कहेंगे इसने तो ये कोट करा था. जो मेरी current consciousness, and today is 21st of March 2025. So whosoever is watching when, uh, as per me, you have both masculine and feminine energy inside you. Everybody has that. If you are either a core feminine or a masculine, दोनों में दोनों energies होती हैं. So you are either a more feminine and less masculine or whatever. मतलब एक energy से आप ज़्यादा relate कर सकते हो. So supposedly I relate myself with more feminine energy. Obviously there is a masculine energy inside me as well. So there is an outer match of that energy too. Because अगर हम manifestation law of attraction की बात करें, तो अगर मैं बोल रही हूँ कि I want this car, I want Mercedes, so obviously there is a Mercedes outside which belongs to me. If I want a home, there is a home which I feel that is mine, is available in the universe for me, right? Similarly, if I feel I'm a feminine, there is a masculine energy inside me, there is an energetic match of that energy which is outside me, somewhere in the universe. Having said that, uh, come back to the same point that you have both energies inside you. तो बाहर जो है वो एक सिर्फ एक match to that energy है, which you might feel pulled to or get attracted to, but you have that energy inside and you can anchor that at any moment of time. This is what twin flame as per me. थोड़ा सा spirituality में जाएंगे तो शिव शक्ति कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं, हम राधा कृष्णा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, हम राम सीता कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. और अगर इनमें से किसी की भी जर्नी देखें तो कोई भी जर्नी बहुत रोमांटिक वैसी जर्नी नहीं थी कि दो लोग हैं एंड देयर इज अ हैप्पीली एवर आफ्टर. राम सीता हैज देयर ओन सेंस ऑफ hard सेपरेशन। time and sufferings going on, where obviously they met for some time and then they get separated. Radha Krishna also, they were like not a conventional kind of a relationship, because they were not, I am not sure, they were not exactly married to each other or something like that. So there was no conventional relationship. Shiv Shakti also story is not a very romantic, I mean, yeah, romance was on and off part of it, but it was more of a purpose because Sati took the birth again and then it was in form of Parvati. So it was whole journey of being a distorted feminine to a divine feminine. So each of these journeys signifies that there is a bigger purpose of being in a relationship or being in a companionship or being coming together as two humans who are
having a purpose which is much more than living a life or getting married or having kids. So that's what I feel. Twin flames are not something which are conventional masculine and feminine who will come, take birth and can do like normal stuff. They can be, it can be part of their journey, but there are mostly bigger purposes involved, and that is the main reason you won't see people getting 3D married or 3D, I mean, living the normal conventional life as twin flames. So that's what I feel, but you might have a different opinion, people might have a different opinion, and I think we can consider that because I'm open to know the तो opinions of बेसिकली people. आपने जो बोला, मैं जो हम्म, हिंदी जो लोग, हिंदी में बोल या हाँ मैं और हिंदी में लेमन. आपकी बात को बोल हम्म, देती हूँ कि हम्म, बेसिकली जो इतना जो ये कॉन्सेप्ट जो बेचा जा रहा है ना ट्विन फ्लेम्स का, कि आपकी यूनियन होगी और फिर बहुत सारी ऐसी फोटोज लगा दी जाती हैं कि ये देखो इनकी शादी हुई है, तुम्हारी भी शादी होगी। तो सबसे पहले तो ये एक मिथ है, ये एक मिथ्या है जिसको तोड़ना और टूटना जिसका बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स की शादी हो। 95% तो नहीं, मतलब 95 तो मेरे को नहीं हम पता कोई परसेंटेज नंबर में जाएंगे ही नहीं बिकॉज मैंने स्तुति, जा ही नहीं रहे. बट बट या ट्विन फ्लेम्स की शादी हो ये जरूरी नहीं है। नहीं है. ठीक है, नहीं है. पहली चीज। दूसरी चीज मैं अपने व्यूअर्स और अपने लिसनर्स के लिए ये क्लियर कर दूं कि अगर ट्विन फ्लेम में आपको ये वाली चीज लग रही है कि ये यूनियन इस तरीके से होगी, अगर आपका कोई आइडिया है कि ये यूनियन इसी तरीके से होगी, अच्छा चलो शादी नहीं होगी तो निष्ठा हम लिव इन तो कर सकते हैं, अच्छा शादी नहीं होगी तो हम ऐसे तो रह सकते हैं, हम ये तो कर सकते हैं। जो जहां पर आपकी आइडिएशन है, जहां तक आपकी आइडिएशन है, वैसी आपकी यूनियन नहीं होगी। नहीं होती. ट्रू. आप जितना सोच सकते हो आप सोच लो दिमाग से, वैसी यूनियन नहीं होती है। नहीं होती. यूनियन का आई कॉन्सेप्ट ही एग्री. बहुत अलग है। ट्रू. नाउ ट्विन फ्लेम्स व्हाट आई फील, और जो आपने भी बोला, मैं आपकी बात को हिंदी में बोल देती हूँ कि हम सबके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है, जिसका एक बहुत सुंदर रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है शिव और शक्ति, हाफ एंड हाफ। तो राइट साइड ऑफ द बॉडी शिव यानी मैस्कुलिन पार्ट है, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हमारा फेमिनिन पार्ट मानते हैं हम। तो बेसिकली आप जो एक बहुत बचपन से हम सब ने सुना है कि सब तुम्हारे अंदर हैं, भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे सब जवाब तुम्हारे अंदर है, ऐसे ही जब कोई बोलता है कि आपका ट्विन आपके अंदर है, दैट इज व्हाट दे मीन। और स्तुति ने भी यही बात बोली कि हमारे, अगर हम अंदर से चाहते हैं कि हमें मर्सिडीज चाहिए, तो मर्सिडीज का आइडिया जो आया वो एक बाहर की दुनिया में भी है। रियल मर्सिडीज मतलब टैंजिबल मर्सिडीज एक बाहर की दुनिया में है, तो हम देख सकते हैं उसको। वैसे ही जो मेरी एनर्जी का इक्विवेलेंट है, मेरे इनर मैस्कुलिन का जो इक्विवेलेंट है, उसका जो फिजिकल बॉडी में जो मैस्कुलिन वो वाले ट्रेट्स रखेगा, दैट वुड बी माई ट्विन फ्लेम, या राइट। या सो बेसिकली ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट जो है वो सोल लेवल का है, वो इनर कॉन्सेप्ट है, वो फिजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये एग्जैक्ट. बंदा मेरा बॉयफ्रेंड है या ये बंदा मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर दैट पर्सन, तो इसका मतलब ये बंदा मेरा ट्विन है। या ये वाला लड़का मुझे पसंद है, इस पे मुझे क्रश है बहुत लंबे टाइम से, इसका मतलब ये मेरा ट्विन है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यूजुअली ऐसे ही जब, क्योंकि लड़कियां है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिन्स हैं, अपने इमोशंस से चलती हैं। तो आप जब इतनी ईमानदारी और इतनी सच्चाई से किसी के लिए कोई इमोशंस रखते हो, और जब आप उस उम्मीद के साथ किसी भी रैंडम इंसान के पास जाते हो जिसकी आपने 4 वीडियोस इंटरनेट पे देखी हैं, और आप उससे जाके पूछते हो कि क्या ये मेरा ट्विन है, तो वो इंसान आपकी इमोशंस को आपकी कमजोरी समझ के आपको उस लूप में अटका लेता है कि अच्छा एक बार आई है दोबारा आएगी, क्योंकि आपने एक बार ये वैलिडेशन दे दी कि हाँ ये तुम्हारा ट्विन है। लेकिन पॉइंट ये है कि जहां पर सबसे पहला रेड फ्लैग तो यही है कि जहां पर आपको ये वाली चीज कोई बोले कि हम आपको कंफर्म कर देंगे कि ये आपका ट्विन है, वो इंसान से कभी सेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको दुनिया में सिवाय आपकी कोई नहीं आत्मा बता. के और भगवान के कोई नहीं बता सकता कि कौन आपका ट्विन है।
ना So मैं, ना true. स्तुति, ना कोई भी और। Nobody can. और Nobody can. हम दोनों बहुत सालों से टैरो रीडिंग्स करते हैं। मेरे को ऑलमोस्ट 12 हो गए हैं टैरो रीडिंग्स करते हुए। मैं कभी ये क्लेम नहीं करूंगी कि मैं किसी की टैरो रीडिंग के थ्रू ये बता सकती हूँ कि ये मेरा ट्विन है। ना ही मैं कभी एज अ साइकिक प्रैक्टिस करते हुए इतना टाइम हो गया है, मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगी कि मैं आपकी एनर्जी रीड करके ये बता सकती हूँ। क्या आप स्तुति, आपने कभी ऐसा कुछ ना कुछ फेस किया है लाइफ नहीं, में? I prohibit, like I strictly say no to this thing. मैं सीधा मना, अभी आप और कुछ बता इनफैक्ट रहे थे कि आपको एक मैसेज आया था, वो आप वो शेयर करना चाहोगे? yeah, there was this person हिंदी who में। messaged me. There was this ये एक बंदी का मुझे मैसेज आया लिंक्डइन पे, अभी थोड़ी देर पहले आया। ठीक है, तो उसने मैसेज किया कि आप कैन यू डू अ ट्विन फ्लेम रीडिंग फॉर मी। उसने देख लिया था लिंक्डइन पे, आई स्पेसिफाई माई सेल्फ एज कोच जस्ट बिकॉज माई टीचर्स आर देयर एंड ऑल्सो, मतलब उन लोगों ने मुझे एफिलेट भी करा हुआ है, सो दैट वाई। लेकिन मैंने उससे यही बोला कि रीडिंग, व्हाट डू यू वांट ऑफ रीडिंग? अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बता दूं हु इज योर ट्विन फ्लेम, आई कैन नॉट। आई कैन जस्ट हेल्प यू इफ यू फील लाइक कि मैं ऐसी किसी जर्नी में हूं, तो हाउ कुड आई नेविगेट द जर्नी, हाउ कुड आई गो फर्दर। सो बेसिकली मैं अपनी बात बताती हूँ, जब आई वॉज फीलिंग कि मैं ऐसी किसी जर्नी में, आई वॉज फीलिंग सुपर कंफ्यूज, मेरे को नहीं पता था मुझे आगे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू एज अ स्टेप 2। तो आई वेंट टू माई टीचर्स। तो जब तुम ऑब्वियसली किसी गुरु या टीचर के पास जाते हो, तुम्हारा पहला क्वेश्चन भी यही होता है कि क्या आप बता सकते हो कि, सो उनका आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर था, अगर मैं बता भी दूंगा तो क्या, इज देयर सम आउटपुट यू विल गेट आउट ऑफ इट? सर ने सीधा बोला कि ठीक है स्तुति, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन है, बट उससे तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हारी ग्रोथ हो रही है? क्या तुम फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली किसी तरह से ग्रो कर पाओगी? तो मेरा आई हैड नो रिप्लाई टू दैट। ऑल आई से टू एवरीबडी एंड टू whom सर, जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि आप, मैं कैसे पता चले कि कोई मेरा ट्विन फ्लेम है, एक सिंपल सा आंसर है। ये सब भी डेफिनेशन छोड़ दो, शिव शक्ति फलाना फलूना सब कुछ सब छोड़ दो। आप अपनी लाइफ में अपनी स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हो? क्या आपका पाथ योगा, स्पिरिचुअलिटी, क्रिया का है? क्या आप देख रहे हो कि मैं 2 साल पहले फाइनेंशियली यहाँ थी और अब मैं फाइनेंशियली थोड़ा मूव कर रही हूँ, आगे बढ़ रही हूँ? क्या मेरी बॉडी पहले फिट थी, अब मैं और फिट फील कर रही हूँ? सो क्या आपने फिजिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में आप ग्रो कर रहे हो as compared to your past? And obviously when you age, body wise you might not be that strong, but are you capable of doing yoga, or I mean whatever? So आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, उस प्रोसेस में जो रह जाएगा वो आपका ट्विन फ्लेम है, और जो चला जाएगा वो, दैट वाज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड। तो उन्होंने मुझे एग्जैक्टली यही आंसर दिया, और यही मैं हर किसी को बोलती हूँ, अगर आपको पता करना है कौन आपका ट्विन फ्लेम है, पहली बात तो 1 साल 2 साल में पता नहीं चलेगा, इट माइट टेक 6 7 8 10 साल 15 साल, कितने भी लग सकते हैं। अब मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जर्नी शुरू करी से, आई फेल्ट दैट समवन इज माय फ्रेंड, आई फेल्ट दैट, बट मेरे को भगवान तो आके बोल नहीं गए ना कि हाँ भाई यही है, चलो नाउ यू नाउ आई कंफर्म यू दैट दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम। व्हाट आई डिड फ्रॉम दैट पॉइंट, मे बी एट सम ईयर ऑफ माई लाइफ आई रियलाइज कि मे बी दिस पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम, मे बी। अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ, टिल डेट आई एम नॉट 100% श्योर, बट as I keep on moving in my journey, I realize that the people who are eternal, or people who are your real ones, or people who are very close to you in some terms, they'll stay. And whosoever will live in this process, वो ना आपका कोई ट्विन फ्लेम था, ना आपको उससे इवेंचुअली कुछ ऐसा अट्रैक्शन, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं रहेगी। जब आपकी लाइफ के 6 7 8 9 साल बीत जाएंगे, अगर 6 7 8 9 साल बाद भी, इफ यू फील समथिंग फॉर समवन, इफ यू फील दैट यू आर ग्रोइंग एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो ग्रोइंग दैट in इज a वेरी similar, इंपॉर्टेंट। हाँ, in a similar way, maybe दो लोगों की जर्नी थोड़ी वैरी कर सकती है, but in a similar way, on the same path, on the spiritual path, on the personal path, then obviously, and फिर आपको आज नहीं तो कल उस पूरे प्रोसेस में समझ आ ही जाएगा that how you two are interlinked for some purpose or some companionship or some friendship, वो आपको समझ आ ही जाएगा। तो उसके लिए आप आज बैठ के ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है, और फिर ये हो जाए तो मेरी शादी। एक तो यूनियन व्हाट डू यू थिंक? निष्ठा, टेल मी व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ यूनियन, देन आई विल टेल माइन। हम वैसे इस पे अलग से एक एपिसोड बनाएंगे, शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट में कर लेते हैं, हाँ। मुझे लगता है अल्टीमेटली यूनियन वो है जो मैं अभी फील करती हूँ।
हाँ यूनियन वो है जिसमें मुझे लग रहा है कि मेरे साथ हर टाइम भगवान की प्रेजेंस है, हाँ और अल्टीमेटली आपकी यूनियन भगवान के साथ होना इज द अल्टीमेट यूनियन। इट इज द डिवाइन यूनियन। हम यही बोलते हैं ना, डिवाइन यूनियन। यही यही तो कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं ना लोग, डिवाइन यूनियन हो जाएगा। डिवाइन यूनियन यही तो है जो आप फील करते हो, जो मैं फील करती हूँ कि हर टाइम भगवान है साथ में। इफ आई फील दैट माँ काली और महादेव, they are always with me, if I am getting answers for every single step, कि मेरे को आज के दिन में, पूरे दिन में क्या क्या करना है, और जब मैं वो कर रही हूँ तो मुझे इस काम को कैसे करना है। अगर मुझे मेरे 3D के कामों में भी 5D से गाइडेंस मिल रही है, तो राइट। यही तो यूनियन है। और क्या है यूनियन? यही तो है। यूनियन को लोगों ने ये बना दिया है कि ये इंसान मिल जाएगा आपको, और उसके बाद आप साथ में रहोगे, आपकी शादी हो जाएगी, और फिर आपके बच्चे होंगे, और वो बच्चे स्टार सीड्स होंगे और व्हाट नॉट। या जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी देखी है। यू नो देम। आई कैन 100% से कि हाँ, वो एक एक्चुअल रियल ट्विन फ्लेम जर्नी है, जिसमें कि एक पॉइंट पे आके उनकी यूनियन हुई इन द फॉर्म ऑफ 3D मैरिज। बट वो या मैरिज आसान नहीं है। ट्विन हाँ फ्लेम्स की मैरिज बिल्कुल आसान नहीं होती है। बिल्कुल जो आपको लग रहा है ना कि ये तो बस फूल बिछे होंगे, इतनी मुश्किल मैरिज होती है ट्विन फ्लेम्स की। इट इज नॉट इजी, बट इट इज या वेरी लिबरेटिंग। यस वो लिबरेशन तभी आता है उसमें जब दोनों लोग इक्वली अवेकेंड हैं, इक्वली अवेयर हैं। अवेकेंड से भी ज्यादा अवेयर हैं। मैंने इतने या सालों में, आई एम 33, मैंने इतने सालों में कभी भी नहीं देखा कि इफ माई मॉम वॉन्ट्स टू डू एनी चैरिटी, या मेरे पापा अगर कोई चैरिटी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे से कभी पूछा भी हो ऐसे काम तुम करती रहो, ऐसे काम तुम करते रहो। तो वो या इंडिविजुअली तो अपना पर्पस कर ही रहे हैं, साथ में आके भी दे डू सो मच दे फॉर डू द सो मच। सोसाइटी। तो या लोगों के लिए वो कर रहे हैं, और वो कितनी चीजें ऐसी होती है जो वो दोनों कर रहे होते हैं, हमें हमें मेरे को और मेरे भाई को पता भी नहीं होता। यस 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 तो बट एज अ मैरिज, दैट इज नॉट अ वेरी इजी मैरिज। yes yes so basically कोई भी what I'm saying is and obviously वो थोड़ा previous I mean that was they got married like years back हम्म। उस टाइम पे मैरिज टेम्पलेट्स वर डिफरेंट सो हम्म। मैरिजेस व्हाट वी आर सेइंग इज कि ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं हो सकती हम्म। सब कुछ एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एवरी जर्नी इट्स जस्ट दैट conventionally you have to break many templates like उनके केस हम्म। में भी other templates are being broken by you and your brother maybe in different forms उनके केस में right सबसे पहला टेम्पलेट ये ब्रेक हुआ कि दे वर बोथ इन, इट वाज एन इंटरकास्ट मैरिज। yeah दोनों के पेरेंट्स, स्पेशली फ्रॉम माय मदर्स साइड, बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। वो मैं yeah हमेशा बोलती हूँ, वो सती और शिव, मतलब पार्वती के सती रूप की कहानी है मेरे पेरेंट्स की। right right तो ठीक है, वो अल्टीमेटली सब मान जाते हैं, अल्टीमेटली सब मान गए, वो एक बात अलग है। बट वो जर्नी फॉर अ वुमन उस टाइम पे, मतलब was हैट्स ऑफ tough टू माय मदर कि उस टाइम पे उन्होंने वो जर्नी कंप्लीट करी। yes एंड हैट्स right ऑफ टू माय फादर ऑल्सो, जिन्होंने एक, जिनके अंदर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिवा एनर्जी है कि एक को कमिटमेंट करी और वो करा। करा complete अदरवाइज so ऐसी सिचुएशंस में बहुत आसान होता है टूट जाना। true I agree so basically anything can help you break the code templates and can come out of your best potential मतलब जो भी जिसको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग but yeah it's not why I'm saying like see why over the years they also realize the love in between themselves and how that love helped them grow each other like आपस में भी so आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है दोनों लोगों की, इवन एक्सपोनेंशियल टुडे। ग्रोथ है हाँ इवन हाँ टुडे, मतलब आज भी उनकी जो ग्रोथ है, वो आज भी उनका जो फोकस ऑफ लाइफ है, इवन इंडिविजुअली, वो ग्रोथ है।
ग्रोथ है शायद ना। वो, मतलब हाँ, वो मेरी मम्मी ये वाली बात बोलती है, शादी चल भी शायद इसीलिए गई क्योंकि दोनों लोग ग्रोथ को चेज कर रहे थे। दोनों ग्रोथ को चीज कर रहे थे। और यही सिमिलरली विद एनी ट्विन फ्लेम, अगर आपको 8 9 साल 10 साल में भी यू फील दैट लव इज ग्रोइंग और द बॉन्ड इज गेटिंग स्ट्रोंगर, और क्योंकि नॉर्मली कॉन्ट्रैक्चुअल पैटर्न्स में ऐसा नहीं होगा, द नहीं लव विल होता। फेड अवे, the love will not, you will start feeling that now it's time to maybe part ways, or जस्ट मूव now it's ऑन, time हाँ। to move on, लेकिन इसमें एक or पॉइंट maybe और है स्तुति, मैं आपकी बात में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, बोलो क्योंकि बोलो बहुत से बोलो। लोग ये वाली चीज को ऐसे लेते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मतलब मैं तो, हमारे कितने सारे लोग हैं जो कॉमनली हमसे सेशंस लेते हैं और जो बोलते हैं हमको तो 4 साल हो गए, 4 साल में तो हमारी फीलिंग्स हुई हैं। आपकी फीलिंग्स हुई हैं, सामने वाली की है। हाँ, ऑब्वियसली म्यूचुअली म्यूचुअली बढ़ेगी। म्यूचुअली म्यूचुअली बढ़ेंगी। एंड सेकेंडली, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, आपने तो शुरू करा एकदम एंगर से और आप पहुंच गए हो, लेट्स से, कहाँ तक बताओ लव, मुझे, कहाँ, नहीं लव लव तक बोल तो नहीं, देते ना ना हैं। ना ना, लव 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 तक तो स्तुति नॉलेज बहुत मुश्किल है। नॉलेज लर्निंग, नॉलेज लर्निंग से मान लो लर्निंग, कि लर्निंग आपने इज सो। एंगर से शुरू करा और आप एक इस सर्टेन लेवल की अवेयरनेस में आ गए हो जहाँ पे अब आप अब आप बहुत अच्छे से चीजों को हैंडल कर लेते हो। मान लेते हैं कि आपने आपने 0 से शुरू करा और आप तो 25 तक पहुंच गए, सामने वाला बंदा 0 से माइनस में चला गया अवेयरनेस में, तो वो आपका ट्विन थोड़ी ना हुआ। वो एक्चुअल दैट्स में व्हाट तो आई एम जब सेइंग। एक बंदा ग्रो करता है, मतलब स्पिरिचुअलिटी का रिपल इफेक्ट इतना स्ट्रांग होता है स्तुति, कि अगर मैं ग्रो कर रही हूँ तो मेरे से जुड़ी हुई एक स्तुति भी ग्रो कर रही है, स्तुति ग्रो एग्जैक्टली, कर रही है तो उससे जुड़ी हुई निष्ठा भी ग्रो कर रही है, हमारे पड़ोसियों पे भी इफेक्ट आता है उस स्पिरिचुअलिटी का। एग्जैक्टली, तो क्या आपके ट्विन पे नहीं आएगा? तो अगर आप एग्जैक्टली। स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो और अगर आपका, जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ के बैठे हो, अगर वो इंसान ग्रो नहीं कर रहा, तो, या स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहा, तो वो आपका ट्विन नहीं है भाई। आप फिर एक, सिर्फ एक आपने एक, आप एक अगेन एक आप मिथ्या में जी रहे हो, इल्यूजन में जी रहे हो आप। बिकॉज इन दैट केस वही तो बोलूँ, कोई पर्पस आप, मतलब जो वही कमिंग बैक टू हु जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स आर, योर पर्पस एंड पाथ विल मैच सम वे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट पिकिंग अप दोज, आप हैबिट्स बोल लो, आप हॉबीज बोल लो, आप कुछ भी कर लो, वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कोलाइड करते जाएंगे, चाहे दोनों में से कोई चाहे या ना चाहे, इट जस्ट हैपन्स बाय इट्स हम्म। ओन एंड वेरी नेचुरली, बिकॉज हम्म। दैट्स व्हाट, अगर आप किसी चीज को सोल मर्जिंग या यूनियन या वैसा कुछ बोलते हो, तो एग्जैक्टली ये होता, दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज दैट्स हाउ एक्चुअल यूनियन। अगर कमिंग बैक टू, मैंने आपसे पूछा था कि यूनियन क्या होता है, एज पर मी यूनियन इज फर्स्ट आपकी इंटरनल मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का यूनियन होता है, एंड कोई उसमें शादी बच्चा इज देयर इज नथिंग लाइक दैट हो रहा है, वेरी गुड गुड फॉर, वो एक पर्टिकुलर टाइप का पार्ट था, जैसे मे बी राम सीता ने लिया, ठीक है, मे बी शिव शक्ति ने लिया, बट राधा कृष्णा ने तो नहीं लिया, तो एक डिफरेंट पार्ट था। तो ठीक है, वो हो सकता है कि आपके बच्चे हो या आप वो तरह का पार्ट लो, but that's again a different amulet. Coming back to union, so I was saying it's inner masculine and feminine energy. फिर भी अगर आपको कोई 3D प्रूफ चाहिए, कि मेरे को एक 3D प्रूफ चाहिए कि मेरा यूनियन हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरी सोल मर्जिंग ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, तो you will start seeing the changes in the other person. I am, as I said, your hobbies might start match, your spiritual path might start matching, maybe you two start picking the same things or have starting same thoughts about something. आपकी वैल्यूज तो एनीवेज ही कोर सोल से मैच कर रही होती है, तो वो तो हमेशा से ही मैच करेंगी, या फिर नहीं भी कर रही होगी तो थोड़ा थोड़ा मैच करने लग जाएंगी इवेंचुअली। सो that's why I said it's a process which take years. तो आपको कोई 1 मिनट में, 1 महीने में, 1 साल में नहीं बता सकता एक कि कौन सेशन में आपका आप, ट्विन फ्लेम। और एक सेशन में तो कोई भी नहीं बता सकता कि कोई आपका सेशन ट्विन में है तो या बिल्कुल नहीं ही है। नहीं बता सकता यार, सेशन में तो कोई भी, और कोई और बता भी कैसे सकता है ना, क्योंकि आप हो, अगर आप बोल रहे हो कि कोई मेरा ट्विन मतलब ये फ्लेम है, तो ऐसी बात हो आप हो गई, ना। ये एग्जैक्टली ऐसी बात हो गई कि मेरे को, मुझे बुखार है, लेकिन स्तुति आप मुझे बताओ कि क्या मुझे बुखार है या नहीं है, क्योंकि मतलब आपकी वो, वैलिडेशन की, हाँ तुझे बुखार है, मेरे वो सच कर देगा कि हाँ मुझे बुखार है, ये थॉट प्रोसेस है एक्चुअली में। यार वो अगर हम देखो थोड़ा सा इसको ऐसे लेके, ठीक है, अगर आपको बुखार है तो आप मे बी डॉक्टर के पास जाओगे और आप वैलिडेशन लेना चाहोगे कि क्या मुझे, तो डॉक्टर आपको दवाई दे सकते हैं ना, आपको गाइड ही कर सकते हैं, वो ये थोड़ी मतलब नहीं, सॉरी किसी सॉरी, मैं तरह आपको का। इंटरप्ट कर रही हूँ।
हाँ, बुखार बताओ होगा तो बताओ। मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि मुझे बुखार है, है। आप हाँ। मुझे दवाई दो। मैं दो। ये नहीं हाँ। बोलूंगी मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है, मैंने चेक करा समझ था, गई। अभी मेरा समझ गई। टेम्परेचर इतना है, बट आप कंफर्म करोगे कि मुझे बुखार है या नहीं। ये हाँ। मेरा पॉइंट नहीं है। हाँ। पॉइंट ये है कि हाँ हाँ। मुझे बुखार है भाई, मुझे दवाई दो। दवाई दो, या फिर हेल्प मी टू नेविगेट दिस बीमारी, वट एवर इट इज. हाँ। सो बेसिकली अ कोच कैन ऑलवेज गाइड यू, और कोच भी गाइड यू. क्या मैं, इफ आई से माई सेल्फ एज अ ट्विन फ्लेम कोच, आई से अ वन लाइनर, इट्स योर जर्नी, यू नीड टू आइडेंटिफाई हु योर ट्विन इज, यू नीड टू आइडेंटिफाई what you can do. All I can do is कि आप अपनी जर्नी में, all I can facilitate is आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ो. क्योंकि जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, स्पेशली स्पिरिचुअल जर्नी में, so you will be able to understand who you are. When you'll be able to understand who you are, then you'll be able to understand people around you. तो आप हम्म। बहुत क्लियरली बता सकते हो कि ये है और ये नहीं है. हम्म। हैविंग सेड दैट, शैडोज हर किसी की होती है, तो आपकी भी शैडो है तो दूसरे की भी शैडोज होंगी. तो पहले तो हमें शैडो वर्क में हमने एक अलग पॉडकास्ट करी हुई है, वो भी देख लेना जाके. तो कई लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ भी किसी में दिखा जरा सा तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, कुछ मतलब यार मैंने तो कुछ. ये भी देखा है कि लोग लोग इस बात पे ट्विन फ्लेम मान लेते हैं कि आ, मुझे ऑरेंज कलर पसंद है, इसको भी ऑरेंज कलर पसंद है, हम दोनों सेम स्कूल में गए थे, ये मुझसे 5 साल पुराने बैच में था, आज हम दोबारा से रिकनेक्ट हुए हैं एंड सडनली देयर वाज दिस इंस्टेंट कनेक्शन। वो इंस्टेंट कनेक्शन ऑरेंज और स्कूल का था, ऑरेंज कलर और स्कूल का, लेकिन हमने इंस्टेंट कनेक्शन कहाँ जोड़ लिया? ट्विन फ्लेम में। ऐसे वो ही। तो वही बोलूं, नाम पता चल गया, लेबल पता चल गया, तो उस पर कुछ. दैट्स व्हाई. और अगर हम इतनी बात कर रहे हैं तो यार, फर्स्टली आई वांट टू से, डोंट चीट पीपल ऑन द नेम ऑफ ट्विन फ्लेम. आई कि अपने ओ माय हस्बैंड को चीट गॉड, कर यू दिया, जस्ट रेड अपने मी वाइफ को चीट कर दिया टेलीपैथिकली। और बोल दिया ये बंदा. भाई अगर इतना ही कोई ट्विन फ्लेम है तो हैव दैट गट्स, से दिस टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू कि भाई मेरे को, आई कैन नॉट, एंड आई नो दिस काइंड ऑफ मैस्कुलिन पीपल who were courageous enough to divorce their एग्जैक्टली। husband and wives or whatever, to be with, to be on the journey of. और ऐसा नहीं है कि उनके ट्विन फ्लेम में शादी हो रही है, बट उन्होंने अपना ऑनेस्टी में करेज आ गए, रखा, अपनी हाँ। हाँ, वही ऑथेंटिसिटी वाली में आ बात गए जो कि हम करते हैं कि अपने सच में आना। अपने सच में आ गया, अपने सच में आके एटलीस्ट ये तो बोल रहा है कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि तू नहीं है. ठीक है, अब मेरा जिसके साथ होना है, मैं श्योर नहीं हूँ हो जाएगा, बट इसके इसके सिवा भी आई डोंट थिंक कि कोई होगा. एंड तो दे डिवोर्स देयर करंट पार्टनर्स. बट एटलीस्ट चीट मत करो. देयर आर पीपल हु चीट ऑन नेम ऑफ ट्विन फ्लेम. देयर आर हम्म। पीपल हु, मतलब कुछ भी करके उसे ट्विन फ्लेम में लोगों के, टैग मत दो. मैं यही वाला पॉइंट अभी बोलने वाली थी कि अगर आप मैरिज में हो, अगर आप शादी में हो और अगर आपको कोई और पसंद है, तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल्स में मत पड़ो ये सोच के कि ये मेरा कार्मिक है और ये मेरा ट्विन है। क्या पता एग्जैक्टली. आपकी शादी आपके ट्विन से ही हुई हो, लेकिन वो आपको सिर्फ आपका मिरर दिख रहा है, जिसको आप देख एग्जैक्टली. नहीं पा रहे हो, और आप सोचो कि ये एग्जैक्टली. मेरा कार्मिक है। एग्जैक्टली. ठीक है। आई एग्री. सिमिलरली आई एग्री. अगर आप किसी शादी, किसी रिलेशनशिप में हो, और अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान मेरे लिए यही है, लेकिन आपको अट्रैक्शन कहीं और हो रही है, लेकिन आप फिर भी उधर ही हो, तो ये सब मत करो। वही है ना, आप अपनी ऑथेंटिसिटी में नहीं हो जब तक आप. अगर मैं बोल रही हूँ, अगर देयर विल बी पीपल हु आर नॉट श्योर, तो देन टेक देयर टाइम, डू थिंग्स, ग्रो स्पिरिचुअली. क्योंकि जब, वही कमिंग बैक टू, जैसे मेरे टीचर्स ने बोला कि हम नहीं बता सकते, लेकिन यू हैव टू ग्रो. एंड एज यू ग्रो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, एंड एज यू ग्रो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि आप ऐसे कनेक्शन और ऐसे भी 3D जबरदस्ती चीटिंग और ये सब नहीं कर सकते, बिकॉज दैट ऑल्सो नॉट ऑथेंटिसिटी. कि आप, you are being with someone who is already with someone else, right? तो आप जब हाँ, जबरदस्ती ये किसी वाले पॉइंट पे भी रिलेशनशिप मैं में बोलना घूम रहे हो. चाहूंगी कि कुछ कुछ लोग आते हैं सेशंस में जो हम्म. बोलते हैं कि मेरा ट्विन किसी और के साथ है, वो थर्ड पार्टी के साथ है। भाई अगर फिलहाल वो किसी और के साथ है ना, तो तो तुम आप हो थर्ड थर्ड पार्टी. पार्टी, एग्जैक्टली, यू आर द थर्ड वो नहीं पार्टी. है। क्योंकि वो एग्जैक्टली. उसने चूज करा है अपने लिए और कॉन्शियसली चूज करा है। अब आप बोलोगे कि नहीं एग्जैक्टली. नहीं, कॉन्शियसली नहीं करा, कॉन्शियसनेस में होता तो ऐसा ना करता। आप कॉन्शियसनेस में नहीं हो, आपकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है और आप अटके हुए हो। आपकी ईगो आपको ये एक्सेप्ट नहीं करने दे रही है कि ये बंदा जिसको मैंने अपना सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम माना था, वो आज किसी और के साथ है। एग्जैक्टली. आपकी एक्सेप्टेंस उस चीज को लेके नहीं आ रही। सबसे पहले आप ट्रू. अपनी ईगो पे काम करो और अपनी एक्सेप्टेंस पे काम करो, एक्सेप्टेंस अपने पे जान सरेंडर करो. पे काम करो।
ताकि हम्म आप उन सब चीजों से ओवरकम करो और फिर आप उसको एक न्यूट्रल होके देख सको कि हाँ, ये इंसान एक्चुअली में किसी और के साथ है, उसने किसी और को चूज करा है और ये इंसान उसके साथ खुश है। तो मुझे अपनी लाइफ में अपने पे काम करना है अल्टीमेटली। जितनी भी हमने बातें करी, आपने भी मैंने भी, घूम फिर के बात सारी इसी पे आ रही है कि काम ये तो खुद आके पे ही अपन करना अब है। पे करना पड़ेगा, एग्जैक्टली एंड अगर आप बात भी करो किसी के साथ एंड यू हैव दैट, तो मेक श्योर दैट यू आर मेंटेनिंग योर एथिकल बाउंड्रीज, यू मेक श्योर दैट यू आर हम्म। मेंटेनिंग योर मॉरल बाउंड्रीज। आप वो क्रॉस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आई हैव नोन ट्विन फ्लेम्स हु आर फ्रेंड्स, आई हैव नोन ट्विन फ्लेम्स हु आर, I mean, any every kind of people they come. So then I tell them this thing कि ठीक है, I can understand you feel attracted, but then why are you breaking the ethical boundaries? The person इसका मतलब आप pitch in कर रहे हो ना जबरदस्ती कि if a person is choosing someone else, why are you like being that person who is pushing them to be in relationship with you or whatever it is. Anyways, so I mean you have to make एक लेबल के नाम पे पहली बात हमें कुछ भी नहीं करना, और एक हम्म। लेबल के लिए एक लेबल इसीलिए मार्केट में आया ताकि लोग कॉन्शियस और अवेयर हो जाएं, ना कि इसलिए कि लेकिन लोगों ने उसको भी अपना बिजनेस बना लिया। बिजनेस बनाना चलो निष्ठा इज, आई स्टिल फील इट्स स्तुति, बिजनेस देयर इन द इज अ सेंस बिजनेस which is built on ethical and on ethics and morality. ठीक है, दैट इज you फाइन या also do healings for people, you also do the sessions, but there is a ethical way of doing business. या But there are people जो, और मैं बहुत ओपनली ये वाली चीज बोलना चाहती हूँ कि उनकी गलती नहीं है ये जो लोग ये कर रहे हैं, गलती है उन हाँ लोगों की जो अपने इमोशंस में आके उस लूप में अटक रहे हैं। हम्म एक्चुअली में हम्म एक चीज मैं हमेशा से बोलती हूँ, स्पिरिचुअल हाइजीन एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, एनर्जेटिक इंटेलिजेंस। योर एनर्जेटिक इंटेलिजेंस जब आपकी फिजिकल इंटेलिजेंस होती है तो आप देखते हो कि घर साफ है, जहां पे बैठी हूँ वो साफ है, मैं एकदम साफ हूँ। एनर्जेटिक क्लियरेंस होती है कि मैं किसी की एनर्जी में इतना तो नहीं घुस गई कि मेरी डिपेंडेंस हो गई, वाइस वर्सा कोई मेरी एनर्जी में इतना तो नहीं आ गया कि उसकी मुझ पे डिपेंडेंस हो गई। थर्ड एग्जैक्टली थिंग इज स्पिरिचुअली समझना कि मैं इस लूप में अटक रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही है सब लूप्स को क्रॉस करके ऊपर चले क्रॉस जाना उन करके सब चीजों से। या एंड अटैचमेंट एनर्जी में तो आप ट्विन फ्लेम क्या, पहली बात तो ट्विन फ्लेम तो बिल्कुल नहीं, किसी से भी नहीं रह सकते एज लॉन्ग एज यू आप आर नॉर्मल अटैच्ड। नॉर्मल दोस्ती किसी से रखना चाहो वो भी अटैचमेंट में नहीं चलती नहीं ही रह नहीं, सकती। हाँ। चली ही नहीं, मतलब चलेगी ही नहीं अगर आप अटैचमेंट एनर्जी में हो। अगर आप ये हो कि मेरा सिर्फ मेरा मुझसे बात में पोजेसिवनेस ओवर अटैचमेंट, दैट वोंट वर्क। द हम्म। फर्स्ट एंड द foremost पार्ट ऑफ actual true love is liberation. Love love आपको free करता है. Love is a only tool on this planet that can liberate you from anything. तो अगर आपका twin flame, अगर आपका बंदा, अगर आपका boyfriend, अगर आपका husband, अगर आपको liberation या freedom नहीं आ रही, तो you need to still work on yourself. Twin flame हो या ना हो, कोई आपका eternal partner हो या ना हो, that those are very secondary things. True love brings liberation. That's what I learned in my 100%। journey. And once you start feeling that liberation, आप एक्चुअल में फ्रैंकली बताऊं तो किसी बंधन में पड़ना ही नहीं चाहोगे। अगर मुझसे कोई बोले शादी कर ले तो मैं करना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग बट आई फील कि जब मेरे पास उड़ने की चॉइस है तो मैं जबरदस्ती अपने आप को कैद क्यों करूं। सो दैट्स अ कार्मिक बंधन ओनली। हैविंग सेड दैट, नो ऑफेंसेस फॉर पीपल हु गेट मैरिड, वेरी गुड इफ यू आर वर्किंग ऑन पर्पस। Maybe the purpose is to break the template, but I feel mine is not. So so, सबके अपने so स्तुति, सी सबने यू आपके यू यू हैव, आपने एक ऐसा आपने एक ऐसा लूप तोड़ा बहुत सारी लड़कियों के लिए, इवन इन योर ओन फैमिली, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जो भी आपका जितने भी आपके सर्कल में लोग आते हैं, आपने उनके लिए ऑलरेडी एक पैटर्न और एक वो कंडीशनिंग तोड़ी कि लड़की अकेली नहीं रह सकती। आपने अपना घर लिया, अपनी गाड़ी है, अपनी अच्छी, आपकी बहुत अच्छी जॉब करते हो आप, यू हैव योर ओन बिजनेस, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो आपने ऑलरेडी एक वो कंडीशनिंग तोड़ दी कि लड़की अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। कमिंग फ्रॉम अ नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, या है ना, इंडिया के एक छोटे स्मॉल छोटे टाउन से, है ना, वहां हाँ से आके एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचना, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी कंडीशनिंग ब्रेक करना है और बहुत बड़ा हम्म जनरेशनल
ट्रॉमा, जनरेशनल trauma पैटर्न कह with लें कि वो that. ब्रेक कर दिया. बट एट द सेम टाइम देर आर पीपल जो ऐसी हेल्दी मैरिजेस में हैं जो Yes, उस तरीके की चीजों को ब्रेक कर रहे हैं. आज के टाइम पे जब exactly. हर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल्स और चीटिंग एंड किलिंग्स इन सब Open चीजों में अटका हुआ relationships. है, ओपन रिलेशनशिप्स इन सब चीजों में जब लोग अटके हुए हैं, सिचुएशनशिप्स, ऐसे भी लोग They हैं जो are बहुत अच्छी they are breaking डिवाइन those steps. मैरिजेस में हैं, Marriages जिनमें में एक है. जो I आप जैसे आप agree. बोलते हो थर्ड एनर्जी एक्टिवेटेड है, Activated. Yeah. तो Yeah, I वो उस agree. तरीके का एग्जाम्पल वो सेट उस कर रहे तरह हैं. की, yeah. So I mean, to each of its own, but yeah, and for third energy, I think we can do a separate podcast on हम्म. that, because that thing deserves a separate podcast. अभी के लिए I think आज के लिए हमने काफी आज बात के कर लिए लिया है. इतना ही हम करते हैं इस सेशन में. बट पार्ट 2 ऑफ दिस ट्विन फ्लेम सीरीज में हम बात करेंगे पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स. क्यों होते हैं ट्विन फ्लेम्स, उसके हम पर्पस पे बात करेंगे. Done. Yeah. दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड. हमको कमेंट्स में बताओ कि ऐसा कौन सा लूप है जिसमें आपको लगा कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप अटक चुके हो. लेट अस नो इन द Yeah. कमेंट्स, वी वुड ट्राई टू Yeah. आंसर. और Yeah. कोशिश करेंगे वीडियोस बनाएं उन पे अलग अलग. बट आज के लिए इतना ही. पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो विल बी अबाउट द पर्पस ऑफ ट्विन फ्लेम्स, कि होते क्यों Twin हैं ट्विन flames. फ्लेम्स. एंड Hmm. दैट्स इट फॉर टुडे. आप कुछ Yeah. बोलना चाहोगे? Yeah, मैं ये बोल रही थी, there are many people who watch our videos but they don't subscribe. Though I don't want to be that person जो बोले subscribe, यार मन करे तो कर लो, तुम्हारी मर्जी है. But we were seeing the data and there मन are like करे नहीं, एक 90%. मिनट. मन करे नहीं भाई, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अरे ये मतलब एक एनर्जी एक्सचेंज है. ठीक है, तो सब्सक्राइब करो चैनल को अभी राइट नाउ चलो सब्सक्राइब करो. मतलब बेसिक एनर्जी एक्सचेंज में लाइक भी कर सकते हो, बट अप टू यू गाइस. तो मतलब मैं नहीं, ऐसी बोलूंगी एडवांस्ड कि मैं एनर्जी जैसे एक्सचेंज मन करो, सब्सक्राइब करो. चलो जो भी है whatever. तो on that note, I think we can end it right here. Stay happy, यस, stay blessed, and most importantly, stay grateful. Thank you. Bye. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन बाय, Bye. नमस्ते. Namaste.